Hey, hi guys. Am I audible? Yes, yes. Yes. Is my screen is visible, guys? Yes, Akash. Okay. All good with you? Yes, yes. Now all good with me. Uh, it's been a long time. Actually, my mother has passed away. That's why. All right. Really, I'm sorry for your loss, man. I hope everything is on track now. Yes, yes. Now everything is all right. It's a part of life here. Yes, I can understand. Okay. So, guys, today we are going to discuss a topic that is very important topic, which is known as the WBS. WBS. That is known as the work breakdown structure. So before jumping directly into the topic, let's discuss some major terminologies over here. So the very first terminologies is related to the story points. Can anyone tell me what is a story point and why we use this story point? Yes, guys. I hope we already had a discussion on a story point, right? Yes or no? Yes, sir. है ना? तो डिस्कशन किया है तो स्टोरी पॉइंट क्या होती है बिकॉज ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज है वी विल डिस्कस इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एज वेल सो वहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो दैट्स वाई हम लोग सबसे पहले यही चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. Story point is a unit of measure of like it's the time estimation of a sprint. ओके. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? Like the developer tell us the estimated time, and according to that time estimation, we decide the story point according to the Fibonacci series. अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची सीरीज. ओके. एनीवन एल्स? बताओ गाइस. गलत आता है वो भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा. इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टोरी पॉइंट एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड स्प्रिंट प्लानिंग एज वेल. So for any task or subtask, we have to plan, measure the weight of the task. So as per the complexity, weight, or the measure of the task, we put some, uh, like we give some time that sprint into a user story point, which include the description as well of the task, the description, the timeline, measure of it, how much time it could be delivered, if there's any time stuck or predictability, there's continuous improvement, it includes everything. ओके. एनीवन एल्स? अच्छा, what is the workflow till a story point? Let's suppose that you gather the requirement and you have a functionality and you wrote the user story on it. So from there to till a story point, what is the workflow? Gathering requirement, then planning, then backlog, that product backlog, then putting it into task subtask or sprints. अच्छा, स्प्रिंट प्लानिंग में आप लोग क्या करते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट? आप स्प्रिंट प्लानिंग में अपनी कंपनी में क्या करते हो? लेट्स सपोज कोई एक क्वेश्चन आता है. यूजर स्टोरी बनाते हो उसमें. स्प्रिंट प्लानिंग में यूजर स्टोरी बनाते हैं. मतलब जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट कैसे करना है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है, वो हम उसमें ड्राइव करते हैं. ठीक है. यूजर स्टोरी क्या होती है? व्हाट इज यूजर स्टोरी? यूजर स्टोरी टोटल टास्क और उसका एग्जीक्यूशन और कितने टाइम में होगा. नहीं नहीं नहीं. यूजर स्टोरी क्या होती है? व्हाट इज यूजर स्टोरी? Because in work breakdown structure you guys have a proper knowledge on story points क्या होते हैं, बैकलॉग रिफाइनमेंट क्या होती है, यूजर स्टोरी क्या होती है, कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है.
ये सारी की सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है बिकॉज मतलब यूजर स्टोरी तो डिस्क्रिप्शन होता है ना उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का जिस पे हम काम करने वाले हैं, फंक्शनैलिटी या रिक्वायरमेंट व्हाटएवर यू वांट राइट। ठीक है। और कोई? यूजर स्टोरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, डिस्क्राइब व्हाट द यूजर नीड्स। कैसे डिस्क्राइब करोगे? प्लीज टेक इन एन एग्जांपल। कैसे डिस्क्राइब करोगे यूजर स्टोरी को इंटरव्यूअर के सामने? अगर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूजर स्टोरी, एक्सप्लेन विद इन प्रॉपर एग्जांपल, या फिर एक्सप्लेन विद द रीसेंट एग्जांपल, फिर क्या करोगे आप लोग? For example, if we want to create a search button on any e-commerce website, तो हम उसमें क्या क्या एंटर कर सकते हैं और उससे क्या क्या रिजल्ट आएगा, वो सब पॉइंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक कि सर्च करने के लिए हम प्रोडक्ट आईडी भी डाल सकते हैं, उसका नाम भी डाल सकते हैं, रिलेटेड सर्च में और भी चीज़ें भी आ नहीं सकती है, उसमें अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें भी आ नहीं नहीं सकती नहीं हैं। नहीं नहीं। मैं यूजर स्टोरी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि यूजर स्टोरी कैसे लिखेंगे आप? यूजर स्टोरी, एज अ यूजर आई वांट टू लॉग इन इनटू वेबसाइट so that I can access my personal account। ये किसकी यूजर स्टोरी हुई? ये यूजर पर्सपेक्टिव है। नहीं, यूजर स्टोरी किसकी हुई? आपने एस से लिख दिया पूरा का पूरा, बट हमें टॉपिक नहीं पता। ये वेबसाइट वेबसाइट लॉगिन के लिए। नहीं, खाली It's लॉग for the search button. नहीं। देखो गाइज, यूजर स्टोरी पे हम लोगों ने बहुत बड़ा लेक्चर लिया था, राइट? लिया था कि नहीं लिया था? ये एपिक की यूजर स्टोरी है। नहीं, यूजर स्टोरी पे हम लोगों ने बात किया है कि नहीं किया है? यस और नो? यस करेक्ट। यस। तो यूजर स्टोरी कैसे लिखते हैं हम लोग? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई भी एक एग्जांपल ले लो। अब मुझे यूजर स्टोरी, लेट्स सपोज दैट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक लॉगिन, है ना? आईसीआईसीआई एक बैंक है, आई एम ए यूजर एंड आई वांट टू लॉग इन। तो व्हाट इज द यूजर स्टोरी ऑफ लॉग इन फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव? क्या होगी? गाइस, दिस इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट द यूजर स्टोरी, और वही हमें नहीं पता है अभी। कैसे चलेगा? As per the acceptance criteria and the needs of the user, right? नो। वो दो लाइन क्या है? वो लाइनर क्या है? वो आप मुझे बता दो। दैट्स इट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की तो बात की बात है। एंड एज अ बिजनेस एनालिस्ट, हाउ यू नो दैट कि जो यूजर स्टोरी आपने लिखा है दैट इज प्रॉपरली गुड और नॉट? विच मैथड डू यू गाइज यूज टू राइट द यूजर स्टोरी? According to the format, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट? व्हाट फॉर्मेट? like as a I want, so that, so you told us that format. ओके, Yeah. बट हाउ यू मेक श्योर दैट कि दिस फॉर्मेट इज करेक्ट और नॉट? वंस यू राइट द यूजर स्टोरी, फुल यूजर स्टोरी, आपने पूरी यूजर स्टोरी लिख ली। एज अ फ्लिपकार्ट यूजर आई वांट टू लॉग इन दिस 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 दिस, बट दिस यूजर स्टोरी इज गुड और नॉट? हाउ यू? It should meet the requirements. नो। इन्वेस्ट थ्रू इन्वेस्ट मेथड वी एनालाइज दैट। इन्वेस्ट मेथड। देखो, मैंने कई बार ये चीज़ बोली है कि व्हेन इंटरव्यूअर आस्क ए क्वेश्चन व्हाट इज यूजर स्टोरी, या कोई भी क्वेश्चन अगर वो पूछता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्पीक द डेफिनेशन, एंड अलोंग विद दैट हम लोगों को एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है? वो चीज़ अभी किसी की भी नहीं निकल रही है। ऐसा क्यों है? एड टू कार्ट पे यूजर स्टोरी क्या होगी? एड टू कार्ट पे यूजर स्टोरी क्या होगी? व्हाट इज द यूजर स्टोरी ऑफ दिस एड टू कार्ट फीचर? As a customer, I want to add the products to my shopping cart so that I can purchase multiple items or whatever the items I have selected in single order. गूगल पे भी क्या होगी? गूगल पे इंटीग्रेशन, आपकी वेबसाइट में गूगल पे इंटीग्रेट करना है, इसके लिए यूजर स्टोरी क्या होगी?
LMS की यूजर स्टोरी क्या होगी? लीव मैनेजमेंट सिस्टम की यूजर स्टोरी क्या होगी? As an employee, I want to apply for leave directly from the dashboard or the portal so that I can manage my time off or I can take the off. Only from the employee perspective? Means no, means it can be from the perspective of HR or the admin as well. Correct. ठीक है, no issues. So let's start the topic that is known as the work breakdown structure. What is work breakdown structure? पता है किसी को? पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट प्रैक्टिकली नहीं करा है. So we are going to discuss this topic practically. How you can break the whole project into the different issues. ठीक है, and after this class, the next class we will discuss इन जीरा. जीरा के अंदर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो देखो, वंस यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट डिड द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम द क्लाइंट साइड. ठीक है. आफ्टर दैट आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करा. ठीक है. तो वंस द डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिएटेड एंड यू हैव अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द क्लाइंट साइड, देन उसके बाद आप लोग क्या करोगे? प्रोजेक्ट को ब्रेक करोगे. Because you or developer or tester are not able to develop and deploy the project in one go. वो कभी ऐसा होता ही नहीं है. So as a business analyst or as a team, this is your roles and responsibility to break the whole project into the different issues. मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैंने बोला issues. ठीक है. और इश्यूज कौन कौन से हैं? देखो, अगर हम लोग इंडस्ट्री स्टाइल में चीज़ें करते हैं, मैं यहाँ पे इंडस्ट्री स्टाइल में बताऊंगा चीज़ें जो अभी के लिए यूज हो रही हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ issues are there, but in Jira there are some standard issues are there, just like epic, story, task, subtask. ठीक है. सम कंपनी फॉलो द कल्चर ऑफ मॉडिफिकेशन एज वेल. अगर आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हो जीरा के अंदर. वो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास जब हम लोग जीरा करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ थिंग इन WBS देयर आर ऑलमोस्ट 4 to 5 things. The very first part is epic, second is story, third is task, fourth is subtask, and the last one is the cost estimation. Cost estimation. So as a business analyst, you should know about the cost estimation as well. क्योंकि अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, जितने लोगों ने अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो इंटरव्यू जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है. So you as a business analyst should know about the cost estimation as well and how to break the whole project as well. ठीक है, वो बात की बात है, आपको करना पड़े ना करना पड़े, that is the company culture. But as of now, you should have a proper knowledge how to break the whole projects into the epics, tasks, subtasks, stories along with the cost estimation as well. So that you guys have a proper knowledge कि अगर क्लाइंट की साइट से एक वेबसाइट आई है, so how to convert that website or that development or deployment into the proper breakdown structure along with the cost estimation, so that जब आप रिक्वेस्ट पर प्रपोजल डॉक्यूमेंट बनाओ या कुछ भी XYZ बनाओ, तो आपको चीज़ें पता हो कि कॉस्ट कैसे निकालनी है. अंडरस्टूड? ठीक है. सो फ्रॉम द सेल्स टीम जो भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा या जो भी बिडर होगा, ठीक है, दे गाइज विल गिव यू ए प्रॉपर रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू मोबाइल ऐप या फिर iOS, कुछ भी XYZ रिलेटेड हो सकती है. ठीक है. तो जब यहाँ पे पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, यू गाइज डू द किक ऑफ मीटिंग. वंस द किक ऑफ मीटिंग इज ओवर, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हम लोगों ने पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एलिसिटेशन में बात करी है वो आप लोग सब करोगे. सब लोग करने के बाद वंस यू हैव द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द क्लाइंट साइड के प्लीज प्रोसीड फॉर द डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, देन आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी करोगे. तो वो पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं. ठीक है. पहले अप्रोक्सीमेशन होता है, बाद में जो है वो बिल्कुल एक तरीके से प्रिसाइसन वे में होता है. तो सम कंपनी फॉलो द कल्चर ऑफ एपिक वाइज डिप्लॉयमेंट के वंस द वन एपिक इज कंप्लीटेड देन वी विल गिव यू द इनवॉइस. तो हर एक कंपनी का अलग अलग कल्चर है. तो हम यहाँ पे एपिक वाइज डिस्कशन करेंगे कि एपिक में हम लोग किस तरीके से चीज़ें करते हैं.
ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज दैट, लेट्स टेक इन प्रैक्टिकल एग्जांपल, ई कॉमर्स की वेबसाइट, ठीक है, ई कॉमर्स वेब प्लस मोबाइल एप्लीकेशन। आकाश भाई रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। ठीक है। सब लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, क्लाइंट्स वांट्स एन ई कॉमर्स वेबसाइट अलोंग विद द मोबाइल ऐप, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टू कन्वर्ट द होल प्रोजेक्ट इनटू द एपिक्स। सबसे पहला काम यही है, बिजनेस एनालिस्ट का सबसे पहला काम यही होता है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज में। एंड द वेरी फर्स्ट इशू इज नोन एज द एपिक। व्हाट इज एपिक? व्हाट इज एपिक? The module. द मॉड्यूल। व्हाट इज मॉड्यूल? A module, like the feature we are going to work on. नहीं, एपिक इज समथिंग, a large portion of anything, है ना। लेट्स सपोज दैट दिस इज द प्रोजेक्ट, है ना, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये एक रिक्वायरमेंट है, तो इस रिक्वायरमेंट का इतना हिस्सा, दिस पोर्शन इज नोन एज द एपिक, ठीक है। तो एपिक क्या है, एक लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी है, किसी भी चीज की लार्ज पार्ट। सो व्हेन वी ब्रेक डाउन दिस ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप इनटू द एपिक, तो पहला एपिक क्या होना चाहिए? पहला एपिक क्या होना चाहिए यहाँ पे? यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट, आप लोगों ने देखा होगा, आप Amazon यूज करते हो, यू गाइस आर यूजिंग फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो। सो यहाँ पे क्या होता है, यूजर मैनेजमेंट का भी चीजें होती है, लाइक जस्ट लाइक लॉग इन, रजिस्टर, है ना, अपनी प्रोफाइल को चेंज करना, एड्रेस को ऐड करना, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंडर में आ रही है? यूजर मैनेजमेंट के अंडर में आ रही है। तो इसी तरीके से एज ए बिजनेस एनालिस्ट, व्हेन यू गाइज आर गोइंग टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग विद द टीम, विद द एसएमईज एंड ऑल, तो हम लोग क्या करते हैं, यही सारी चीजें देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक क्या समझ में आया? Like Epic is a large part of any project or any product, and we have a project of e-commerce in which we divide the project into different epic, and our first epic is user management in this. ठीक है, और किसको क्या समझ में आया? देखो, ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया, ये सोच लेना, ठीक है। बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड द डॉक्यूमेंटेशन और द यूएटी। अब वो चीज़ नहीं रह गई है। बाद में विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स हम लोग देखेंगे कि एआई टूल्स को इसको और कैसे हम लोग स्मूथ बना सकते हैं, बट बेस सबका पता होना चाहिए कि WBS में एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट ही क्यों लिखा, किसी की समझ में आया ये बात? हम्म थोड़ा सा Akash, सोचना user. पड़ेगा, थोड़ा सा और डीप डाइव करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ समझ में आई तो समझ जाना सब चीज़ समझ में आ गई। कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, क्रिप्टो से रिलेटेड हो, कुछ भी XYZ हो, वो सब समझ में आ जाएगा अगर ये आ गया तो। एंड WBS, Akash, यस यस, users are the main business driver. That might be one of the reason. हाँ, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग फिल्ट्रेशन, ठीक है, हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन मीन्स टू से दैट कि हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, लेट सपोज अगर इसी पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे सर्किल के अंदर मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाता हूँ, ठीक है, तो हम लोग इन शेप्स को अलग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे एपिक के अंदर। सो एपिक इज जैसे लार्ज पार्ट ऑफ एनी पोर्शन और एनी बॉडी। तो सबसे पहले द एपिक फर्स्ट इज रिलेटेड टू द यूजर मैनेजमेंट।
कुछ लोग यूजर ऑथेंटिकेशन भी लिखते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ तो मैं हमेशा यूजर मैनेजमेंट यूज करता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द एपिक। सो इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, जो भी यूजर का काम होगा, वट एवर द यूजर विल डू इन दिस ऐप और इन दिस वेबसाइट, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर बाद में उसका कोई एपिक नहीं बनेगा। ठीक है। सो इन द यूजर मैनेजमेंट, इन द यूजर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एपिक। अब क्या करेंगे हम लोग? एपिक हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है ना, वी ऑलरेडी डिसाइड दिस एपिक यूजर मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आकाश भाई, जैसे मेरे को अभी थोड़ा सा समझ में आया, यूजर मैनेजमेंट इज द लार्ज पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, राइट? एनी प्रोजेक्ट नहीं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ओनली फॉर द ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। हाँ, अभी हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ओनली फॉर द ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड। ठीक है। आकाश, आई हैव वन क्वेश्चन। Yes. जैसे आपने बोला ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में फर्स्ट एपिक हम लोग, इज इट मैंडेटरी कि No. यूजर मैनेजमेंट ही लेंगे कि कुछ Not और भी ले mandatory. सकते आपकी मर्जी। हैं? ओके, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ओके, ऑलराइट। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? एपिक हमने पहला डिसाइड किया यूजर मैनेजमेंट। सो अंडर द यूजर मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू discuss or we are going to point out the user activities or end user activities, just like we all are the end user from the perspective of Flipkart, from the perspective of Amazon, है ना? तो if let's suppose that if I am a new user and I want to create an account on the Amazon, तो first of all I have to register, है ना? तो रजिस्टर में मैं नेम डालूंगा और अपना लास्ट नेम डालूंगा, जो भी XYZ जो मैंडेटरी फील्ड होगी वो डालूंगा। देन वंस द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द लॉगिन पार्ट। तो वंस द लॉगिन इज कंप्लीटेड, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द होम पेज, है ना? उस होम पेज के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। तो मेरा क्या काम है वहां पे? मेरा मेरा ये काम है कि अपना एड्रेस को ऐड करना, पेमेंट को सेटअप करना। वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे आ रही है? वो सारी की सारी यूजर मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन का पार्ट। सो वंस द एपिक इज फाइनलाइज फ्रॉम योर साइड, ऐसा नहीं है कि बीए ही इस चीज को टेक केयर करता है, ऑल्दो डेवलपमेंट टीम इज ऑल्सो विद यू, वो भी आपको इन चीजों में हेल्प करेगा, नो इशू फॉर दैट। ठीक है। तो वंस द एपिक इज कंप्लीटेड, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट दैट इज नोन एज द स्टोरी। एपिक कंप्लीट हो गया, एपिक के अंदर स्टोरी आती है, स्टोरी के अंदर टास्क आता है, टास्क के अंदर सब टास्क आता है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एपिक बना दो फिर डायरेक्ट सब टास्क बना दो, दिस इज रॉन्ग वे। ठीक है। सो और एक ही एपिक नहीं होता है, दुनिया भर के एपिक होते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का एपिक के अंदर? अभी अभी और एपिक भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, और 5-6 एपिक और डिस्कस करेंगे पूरे के पूरा प्रोजेक्ट का। अभी मैं एक ही एपिक की बात कर रहा हूँ। तो द वेरी फर्स्ट एपिक इज यूजर मैनेजमेंट। अब यूजर मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे आप लोग? यस गाइस, यूजर मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे? अभी मैंने बताया। आकाश, यूजर मैनेजमेंट के अंदर विल ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट चंक्स यूजर की एक्टिविटीज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, लॉगिन एक हो गया और रजिस्ट्रेशन माइट बी द सेकंड, और या सो विल मूव अकॉर्डिंगली। So the second step, once the epic is finalized, so the second step is story creation। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टोरी बनाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग स्टोरी बनाते हैं। सो स्टोरी नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? द वेरी फर्स्ट इज नोन एज द रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। ठीक है। आफ्टर दिस क्लास आई विल शेयर ए एक्सेल फाइल विद यू जहाँ पे ये सारी चीजें प्रॉपर मैनर में लिखी हुई है। सो डोंट वरी। ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि थ्योरी का चल रही है। ठीक है। तो उस एक्सेल फाइल में हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर मैनर में लिखी हुई है। वंस यू गेट ए सिलेक्शन इन द कंपनी, तो कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या फॉर्मेट होता है, वो मैं सब दूंगा। ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो स्टोरी है, द वेरी फर्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। आप इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हो। द स्टोरी नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू यूजर रजिस्ट्रेशन एंड द सेकेंड स्टोरी इज रिलेटेड टू द यूजर लॉगिन। ऐसे भी कर सकते हो।
समझ में आया स्टोरी? पहली स्टोरी क्या हुई? यहीं पे अगर मैं थोड़ा दूसरी स्टोरी लेता हूँ, स्टोरी नंबर 2 दैट इज रिलेटेड टू, क्या होगी स्टोरी नंबर 2? यूजर रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लॉगिन भी हो गया, अब क्या होगा? और क्या स्टोरी हो सकती है? पासवर्ड मैनेजमेंट। प्रोडक्ट पासवर्ड मैनेजमेंट नहीं, पासवर्ड मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ही पार्ट है। प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्च। नहीं नहीं, वो उसका एपिक पूरा अलग है। रोल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? रोल एंड परमिशंस। रोल एंड परमिशन वो एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अभी हम लोग यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। यूजर एड्रेस प्रोफाइल। अपडेशन। एड्रेस अपडेशन किस में आएगा? यूजर मैनेजमेंट में ही, लॉगिन में ही आ जाएगा। प्रोफाइल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोफाइल मैनेजमेंट. So the story number 2 is related to profile management. So I created 2 story. You guys created 3 story as well, 4 story as well, 5 story, जितना भी आपका मन करे वो कर सकते हो. ठीक है. सो अलग अलग ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं. ऐसा नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप करो. आप अलग भी कर सकते हो और ज़्यादा सोच सकते हो चीज़ों की. So I created here 2 story. You guys maybe created 3 story. Just like story number first is related to user registration. Story number 2 is related to user login. Story number 3 is related to profile management. ठीक है. So once the epic is finalized, the epic is user management or user authentication. Under the epic, you guys create the stories. तो मैंने अभी 2 स्टोरी क्रिएट करी है. अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा? आकाश स्टोरी तो क्रिएट हो गई, अब स्टोरी भी तो लिखूंगा ना. बताओ गाइस. अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Akash bhai, story or user story is the same thing. हाँ, सेम थिंग, करेक्ट. Okay. And what's the purpose of Epic actually? क्योंकि मतलब ये कब करते हैं हम? ये तो स्प्रिंट में आ जाता है ना यूजर स्टोरीज तो. नहीं, स्प्रिंट में तो सभी कुछ आता है. स्प्रिंट तो एक तरीके का टाइम बॉक्स है ना, जहाँ पे हम देखो, एपिक एक तरीके का क्या है? एपिक एक तरीके का हम लोग फिल्टराइजेशन कर रहे हैं, है ना. फिल्टराइजेशन का मतलब क्या है? वी नो दैट कि इन द वेबसाइट देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल. पेमेंट भी फीचर है ना, ऐड टू कार्ट फीचर, डिस्काउंट फीचर, बहुत सारे दुनिया भर के फीचर्स है. तो उन दुनिया भर के फीचर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को इनवॉइस जनरेशन में परेशानी ना पड़े. राइट. तो हम लोग एपिक वाइज इनवॉइस जनरेट करेंगे क्लाइंट के लिए. वंस फर्स्ट एपिक इज कंप्लीटेड, देन हम लोग उनको इनवॉइस भेजेंगे. अभी जब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन की, तो वो एपिक के ऊपर कॉस्ट को क्रिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे. I'm sorry to bother in between, but Epic is like a bigger umbrella, and then uske subparts are divided into stories, right? करेक्ट. हाँ, करेक्ट. तो अभी स्टोरी क्रिएट हो गई है. अभी मैं क्या करूँगा? अभी ये चीज़ हम लोग जीरा में भी देखेंगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग में इस चीज़ को कैसे मेंशन करेंगे, स्प्रिंट बैकलॉग में कैसे मेंशन करेंगे, वो अभी बात की बात है. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? किसी को समझ में आ रहा है नेक्स्ट स्टेप? मैंने अभी 2-3 बार बोला है. Yeah, we'll create the task, right? क्रिएट द टास्क. अब टास्क किसके लिए क्रिएट होता है? The stories we have written. हाँ, और कौन करेगा उन टास्क को? Obviously, as a BA, we will do that. That I think depend on the, Developer. for example, developer or tester. It could be anybody. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा? टास्क. अब टास्क मीन्स टू से दैट, लेट्स सपोज टेकन एन एग्जांपल ऑफ दिस यूजर स्टोरी नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू यूजर रजिस्ट्रेशन एंड द लॉगिन पार्ट. तो इसमें टास्क क्या होगा? इसमें टास्क क्या होगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोचने की कोशिश करो. Uh, Login page. first might be the designing related the registration page. माइट भी नहीं, हमेशा मैंडेटरी. डिजाइन द वायर फ्रेम, DW. ठीक है. इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द वायर फ्रेम्स, कि वो दिखेगा कैसे. वी नो द रिक्वायरमेंट.
है ना, वी नो द स्टोरी, यूजर स्टोरी, रजिस्ट्रेशन की क्या हो गई, लॉगिन की क्या हो गया, तो पहला टास्क कौन सा होगा? पहला टास्क डिजाइन ही होगा ना। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करने लग जाओगे कि हाँ डेवलपर जस्ट हमारे पास एक स्टोरी है और इस स्टोरी को डेवलप करना स्टार्ट कर दो। ओके, वो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। मेरे पास एक स्टोरी है, द स्टोरी इज रिलेटेड टू यूजर रजिस्ट्रेशन, और उसमें 2 लाइन लिखी हुई हैं, ठीक है, एंड मैं डेवलपर को बोल रहा हूँ कि इसको बना दो, वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? First, we will need the wireframe, right? First, we will need the design part because developers are highly depend upon the design. वो कभी भी if you guys don't have any kind of design तो वो साफ मना कर देगा कि एक काम करो, पहले डिजाइन बनवा के ले आओ, उसके बाद आई विल टेक केयर। क्योंकि कोडिंग इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिजाइन ना, HTML CSS जो भी है XYZ है, वो सारा का सारा डिजाइन पे डिपेंड है, ठीक है। सो द टास्क अंडर द स्टोरी नंबर फर्स्ट इज डिजाइन वायर फ्रेम्स, और दूसरा टास्क क्या होगा? दिस इज टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 क्या हो सकता है? We can implement the input validations. इनपुट वैलिडेशंस, ठीक है। और क्या होगा? इनपुट वैलिडेशन तो ये पे ही आ गया ना, डिजाइन वायर फ्रेम में इनपुट वैलिडेशन आ गया। Then after that, we can start the development, right? हाँ, लेकिन अभी हम लोग टास्क को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अभी ये सब टास्क में भी ब्रेक डाउन होगा, है ना, यहाँ पे अभी सब टास्क भी आएगा। सब टास्क नंबर 1, चलो पहले थोड़ा टास्क की बात कर लेते हैं। डिजाइन वायर फ्रेम, ठीक है। सब टास्क क्या होगा इसका? लेट्स सपोज डिजाइन वायर फ्रेम इज कंप्लीटेड नाउ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एज अ बिजनेस एनालिस्ट? क्या होगा? यूएक्स मॉकअप एंड रिव्यू बाय द क्लाइंट। क्लाइंट को भी तो दिखाओगे, क्लाइंट को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? जब क्लाइंट उसको बोलेगा कि यस गुड टू गो, देन वो डेवलपमेंट फेज में जाएगा, उससे पहले वो कोई चीज डेवलपमेंट फेज में नहीं जाती है, ठीक है। समझ में आया थोड़ी बहुत चीजें किस तरीके से वी आर गोइंग टू ब्रेक द थिंग्स? एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन स्ट्रक्चर, ऊपर से ले नीचे तक, ठीक है। तो हमने क्या करा? द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टू क्रिएट द एपिक। उस एपिक के अंदर हम लोगों ने स्टोरी, जितनी भी स्टोरी हो सकती है, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिया, मैंने 2 स्टोरी लिखी, आप 5 6 10 15 जो मर्जी करे वो ले लो, ठीक है। उसके अंदर टास्क, द टास्क इज रिलेटेड टू डिजाइन वायर फ्रेम, ठीक है। उस टास्क के अंदर जो सब टास्क होगा दैट इज रिलेटेड टू यूएक्स मॉकअप हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया, एंड रिव्यू विद द क्लाइंट। वंस क्लाइंट गिव यू द ग्रीन सिग्नल कि ओके ये मुझे अच्छा लग रहा है, नो नीड ऑफ एनी मॉडिफिकेशन एंड नो नीड ऑफ एनी एड ऑन्स, प्लीज गो फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग वगैरह करेंगे, उसमें स्टोरी पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे, वो सब बात की बात है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टास्क नंबर 2 इज रिलेटेड टू, टास्क नंबर 2 इज रिलेटेड टू एपीआई, या फिर लॉगिन एपीआई, या फिर इम्प्लीमेंट ऑफ लॉगिन एपीआई। अब डिजाइन आपका बन गया है, अब डिजाइन जब बन गया है तो उसका बैक एंड एंड फ्रंट एंड भी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? Yes. ठीक है। तो टास्क नंबर 2 यहाँ की जगह मैंने बोला कि वो डेवलपमेंट में जाएगा, तो डेवलपमेंट में जाएगा मीन्स टू से दैट टास्क नंबर 2 इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंट द लॉगिन एपीआई, ठीक है। और इसके अंदर जो सब टास्क होगा, द सब टास्क इज रिलेटेड टू बैक एंड और फ्रंट एंड। तो बैक एंड डेवलपर बैक एंड क्रिएट करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड क्रिएट करेगा, आपस में उनको ऐड करेगा, एंड ऐड करने के बाद फंक्शनैलिटी तैयार हो गई। टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 3 क्या होगा? Related to a database. ठीक है, लेकिन वो इसमें ही आ जाएगा, जब हम लोग बैकएंड वगैरह बनाते हैं ना, वो डेटाबेस बैकएंड का ही पार्ट है। Testing. करेक्ट, टेस्टिंग, तो QA टेस्ट, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन,
सो क्यूए टेस्ट सारी चीज़ें टेस्ट करेगा, टास्क नंबर 3। और इसके अंदर सब टास्क क्या होगा, इसके अंदर सब टास्क क्या होगा, टू क्रिएट द test scenarios, to create the test cases. So you as a business analyst, you know the actual requirement from the client side, what client wants, and on the basis of that you have to create the test scenarios, and on the behalf of test scenarios testers or quality analyst create the test cases. ठीक है, वो हम लोग अभी टेस्टिंग में डिस्कस करेंगे। जो टेस्टिंग हम लोग पढ़ने वाले होंगे, व्हाट इज टेस्ट केसेस एंड व्हाट इज टेस्ट सिनेरियोज, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टेस्टिंग होगी जस्ट लाइक रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो एपिक इज यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, एपिक यूजर मैनेजमेंट, स्टोरी लिया, यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। इसका पहले टास्क हुआ डिजाइन वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम के बाद सब टास्क क्या हुआ, उसका मॉकअप बनाना है, प्रोटोटाइपिंग बनाना है और उसको क्लाइंट से रिव्यू करवाना है। वंस दिस इज ओके देन वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड टास्क, जो कि एपीआई लॉगिन या फिर इम्प्लीमेंट एपीआई लॉगिन, जिसके अंदर उसका डेटाबेस वगैरह पूरा का पूरा बैकएंड वगैरह और फ्रंट एंड वगैरह सारी चीज़ें बनेंगी। वंस द डेवलपमेंट इज ओके, कंप्लीट हो चुका है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द क्यूए। तो क्यूए वाले उसको टेस्ट करेंगे इस चीज़ को। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द यूएटी पार्ट, जब स्प्रिंट खत्म होने पे आ जाएगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आकाश भाई ये हम करेंगे किस पे, जीरा पे। डॉक्यूमेंट में करेंगे? ओके जीरा पे। ठीक है, मैं ये एफआरडी पर ये यूएक्स डिजाइनिंग ये सब वायर फ्रेम तो हम डॉक्यूमेंट में दिखाते हैं ना, एफआरडी और बीआरडी। हाँ, वो हम लोग फिग्मा में डिजाइन करेंगे। तो फिग्मा में दिस डिजाइन इज करके हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पिन करते हैं। जैसे आपने बोला एफआईडी में दिखाना है, तो एफआईडी में पिन करेंगे वहां पे ले जाके। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड भी रहे हमारे हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक्सेल में भी कर सकते हो, मैं एक्सेल भी दे दूंगा इस मीटिंग के बाद। और आफ्टर दिस मीटिंग जब हम लोग एक आने वाली नई क्लास में हम लोग जीरा में देखेंगे कि जीरा में ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरा में ही करते हैं। तो ये डिजाइनिंग की चीजें ये दिखाएंगे वो जीरा में ही दिखाएंगे हम हाँ क्लाइंट को। हाँ, क्लाइंट को जीरा में ही दिखाते हैं और जीरा में हम लोग लिंक पेस्ट कर देते हैं। व्हेन क्लाइंट जस्ट क्लिक ऑन द लिंक देन ही और शी विल रीडायरेक्ट टू द फिग्मा, और फिग्मा में वहाँ पे उसका पूरा डिजाइन दिख जाएगा। ठीक है, और ये बिफोर डॉक्यूमेंट है राइट, बीआरडी और एफआरडी बनाने से पहले का है ये अभी चीजें। हाँ, अभी तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना, जैसे जैसे ओके चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी वैसे वैसे चीज़ें बनती रहेंगी। गॉट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट में टास्क क्या होगा, प्रोफाइल मैनेजमेंट में टास्क क्या होगा, बताओ गाइस। सब लोग यूज़ करते हो यार, ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो, अमेजोन यूज़ कर रहे हो। प्रोफाइल मैनेजमेंट में टास्क आप लोग क्या करते हो, एड्रेस और ऑल्टरनेट फोन नंबर अपडेट हाँ, और यानी द टास्क नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू द एडिट प्रोफाइल फंक्शनैलिटी। ठीक है, टास्क नंबर 2 क्या होगा, चेंज पासवर्ड। पासवर्ड भी तो चेंज करते हो, या फिर रीसेट पासवर्ड। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। एक एपिक और लेते हैं और चीजों को ध्यान से समझते हैं। सो द सेकंड एपिक इज रिलेटेड टू, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या देखते हो आप लोग, क्या देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ही। तो अब जब प्रोडक्ट देखोगे तो द सेकंड एपिक इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कैटलॉग। ठीक है, सेकंड एपिक इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हो सकता है प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो इसके अंदर स्टोरी क्या होगी, दिस इज एपिक, एपिक नंबर 2। वो ऊपर एपिक नंबर 1 था, दिस इज एपिक नंबर 2। एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टोरी, पहली स्टोरी क्या होगी इसके अंदर, क्या हो सकती है पहली स्टोरी प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर,
Add product. ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट नहीं बोलते, प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं, Okay. प्रोडक्ट लिस्टिंग. सो प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द फर्स्ट यूजर स्टोरी. अब इस यूजर स्टोरी के अंदर टास्क भी होंगे. ऐसा एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी यूजर स्टोरी भी डिफाइन करते हैं. जीरा के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, करेंगे एज ए यूजर दिस दिस दिस, वो हम लोग करेंगे बाद में अभी, है ना. तो इसके अंदर भी टास्क क्या होगा, टास्क नंबर फर्स्ट, टास्क नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद टास्क नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए, डेटाबेस डिजाइन, है ना. दिखेगा कैसे, किस तरीके से दिख रहा है, अमेजोन पे अलग दिखता है ना. अमेजोन पे इस तरीके से दिखते हैं चीज़ें ग्रिड फॉर्मेट में, फ्लिपकार्ट पे जो है वो इस फॉर्मेट में दिखती हैं चीज़ें. दिस इज नोन एज द स्कीमा या फिर डेटाबेस स्कीमा वगैरह. आकाश, इसमें भी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग फर्स्ट नहीं हुआ जैसे लाइक लॉगिन में हुआ था? हाँ, इसी में ही टास्क आएगा. ओके. जैसे हमारा टास्क नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू द डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ही है, ठीक है. टास्क नंबर सेकंड इज रिलेटेड टू द एपीआई, एपीआई इंटीग्रेशन फॉर प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है. फिर टास्क नंबर थ्री इज रिलेटेड टू द यूआई डेवलपमेंट, यूआई डेवलपमेंट फॉर प्रोडक्ट ग्रिड. तो यहाँ पे डिज़ाइन सबसे हर एक टास्क में, हर एक स्टोरी में द वेरी फर्स्ट टास्क इज रिलेटेड टू द डिज़ाइन, क्योंकि जब तक डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं होगा डेवलपर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है. अब सेम एज इट इज द फर्स्ट यूजर स्टोरी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लिस्टिंग. अब वो प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से लिस्टिंग होती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे टास्क है. आप इनको और ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, वो डेवलपर टीम आपके साथ बैठेगी, चीज़ें डिस्कस होंगी और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं. हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप अपनी कंपनी में जाओगे वहाँ कुछ और चलेगा, दूसरी कंपनी में जाओगे वहाँ कुछ और चलेगा, बट आउटपुट ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम, ठीक है. बट हम लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि यस, इफ द इंटरव्यूअर आस्क ए क्वेश्चन व्हाट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सो आई विल से दैट कि विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे कैसे काम करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरव्यू एज वेल एज द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एज वेल, कि कैसे करते हैं. खाली बी ए नहीं करता, डेवलपमेंट टीम भी साथ में बैठ के करती है, ठीक है. सो स्टोरी नंबर टू, story number 2 is related to once the product listing is completed, then the next story under the product catalog epic is always and always related to search, search and filter. So you guys always seen search and filter options are there, and in e-commerce websites like Flipkart में सर्च एंड फिल्टर का ऑप्शन है, अमेजोन में सर्च एंड फिल्टर का ऑप्शन, सब जगह सर्च एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है. सो दिस सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन कम्स अंडर द प्रोडक्ट कैटलॉग, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कैटलॉग को ही सर्च कर रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, ठीक. तो ये उसी का पार्ट है. ऐसा नहीं सर्च एंड फिल्टर उठा के आप लोग जो है यूजर मैनेजमेंट में लिख दो कि नहीं यूजर ही तो कर रहा है ये चीज़ें, ऐसे नहीं है, ठीक है. सो इसके अंदर सर्च एंड फिल्टर के अंदर फिर और टास्क यहाँ पे आएंगे, ठीक है. द टास्क इज रिलेटेड टू द एड कैटेगरी, प्राइस फिल्टर, ब्रांड फिल्टर, तो दुनिया भर के फिल्टर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे आके, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन सर्च एल्गोरिदम एज वेल, लाइक विद द हेल्प ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल, जो भी उनके पास होगा वो करेंगे. वो डेवलपर का काम है, वो आपका काम नहीं है बिल्कुल. समझ में आया चीज़ें? अभी हमने 2 एपिक डिस्कस करे, दोनों एपिक समझ में आए कि नहीं आए? यस गाइस, जल्दी से बताओ. Yes, Akash. ठीक है. नाउ द थर्ड एपिक इज रिलेटेड टू, अब थर्ड एपिक क्या होगा, एज ए यूजर आई लॉग्ड इन प्रॉपरली इनटू द ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मैंने प्रोडक्ट भी देख लिया है, अब मैं क्या करूंगा, उसको Add to cart. ऐड टू कार्ट या चेकआउट करूंगा. सो द थर्ड एपिक इज रिलेटेड टू कार्ड एंड चेकआउट. कार्ड एंड चेकआउट ही होगा ना. सो अब इस कार्ड एंड चेकआउट में दिस इज द थर्ड एपिक, एंड अंडर दिस थर्ड एपिक we have to create the story. So the story number 1 is related to add to cart. ये मेरी स्टोरी हो गई. एज ए यूजर आई वांट टू दिस 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 जो भी है वो एड टू कार्ट में स्टोरी हो गई.
अब ऐड टू कार्ट में जब स्टोरी हो गई तो देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टास्क एंड सब टास्क आल्सो। तो इसके अंदर का जो टास्क होगा वो क्या होगा? एपीआई, API for cart operation, just like UI integration, just like design of add to cart, वो सारी चीजें होंगी same as it is. Then move towards the second story. Second story क्या हो सकती है? Checkout flow. भाई checkout flow कैसे काम कर रहा है? पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, लाइक रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, जो भी यूपीआई हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी XYZ चीज़ें हो गई वो वहाँ पे शो केस होंगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन पेज आएगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा कार्ड एंड चेकआउट में जितना भी कुछ है वो सारा का सारा इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, Yes, Akash. then epic number 4 is related to the very and very important epic, that is admin panel, है ना? एडमिन पैनल। अब एडमिन कौन होता है? एडमिन कौन होता है? हु इज एडमिन? बिजनेस ओनर। ठीक है, और कौन होता है एडमिन? ये हम लोग जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, वी यूज द फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हम लोग यूज़ करते हैं। सेल चल रही है इन पे, मोबाइल है, लैपटॉप है, सारी टैबलेट्स हैं, हर एक चीज़ें इनके ऊपर है। इन लोगों को लिस्टिंग कौन कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स? मर्चेंडाइज। मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम। ठीक है, मार्केटिंग टीम कर किस चीज़ से रही है? मार्केट एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन से कर रही है, मीन्स ए डिफरेंट इंटरफेस ना। तो फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव ऑलवेज एंड ऑलवेज द यूआई इज डिफरेंट, बट अकॉर्डिंग टू द एडमिन पर्सपेक्टिव द यूआई इज टोटली डिफरेंट। सो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द बिजनेस ड्राइवर्स। कितने बिजनेस ड्राइवर्स उस पर्टिकुलर ऐप को यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। सो द epic number 4 is related to the admin panel, and this is most important part of the project। हमेशा हर एक प्रोजेक्ट का, if you are going to develop a project just like healthcare से related, banking से related, या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड, FMCG से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से related, जो भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडमिन पैनल, बिकॉज यही रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, एंड द एडमिन के अंदर जो यूजर स्टोरी होगी, स्टोरी नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू मैनेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैनेज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? ऐड, एडिट, डिलीट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट के प्राइस, है ना, अपलोड प्रोडक्ट इमेजेस एज वेल। तो वो विद द हेल्प ऑफ एडमिन पैनल, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस की क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो हर एक चीज़ को अपलोड वगैरह कर देगा। सो द स्टोरी इज रिलेटेड टू मैनेज प्रोडक्ट्स, एंड अंडर द मैनेज प्रोडक्ट द टास्क नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऐड, एडिट, डिलीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, टास्क नंबर 2 इज रिलेटेड टू अपलोड प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, स्टोरी नंबर 2 इज रिलेटेड टू द मैनेज ऑर्डर्स भी देख सकता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट देख सकता है, अपडेट कर सकता है, स्टेटस, दुनिया भर के काम कर सकता है। ये हम लोग बहुत छोटे लेवल पे चीजें देख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे चीजें नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? इतना चीज समझ में आया कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ऑल्दो चैट जीपीटी हम लोग करेंगे, एआई टूल की हेल्प से हम लोग चीज़ों को करेंगे, बट बेस पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आप चैट जीपीटी तो यूज़ करोगे नहीं, पकड़ लेगा वो तुरंत इतना। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर काम कर रहा है यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? Akash, for documentation, means we will use the Confluence or the Word files? As you wish, because every company not use the Confluence, क्योंकि पैसा देना पड़ता है ना। तो हमेशा आकाश भाई मुझे ये पूछना था, जैसे हम
टास्क और सब टास्क में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये टास्क में रहना चाहिए, ये सब टास्क का है पार्ट? जो सबसे छोटी यूनिट हो वो सब टास्क है, यानी उसके बाद अगर आप चीज़ों को ब्रेक डाउन ना कर पा रहे हो वो सब टास्क है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एपिक क्रिएशन, स्टोरी क्रिएशन, टास्क क्रिएशन और सब टास्क क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ बैठते हो तो यू गाइज आर गोइंग टू डिस्कस दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द कॉस्ट एस्टिमेशन टू द क्लाइंट कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो यही सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो द सेकेंड आकाश भाई, सॉरी प्लीज, आपने अब बोलो। आई वाज सेइंग इसमें और भी एपिक स्टोरीज आ सकती हैं, राइट? सिक्योरिटी एंड ऑल। दुनिया भर की चीज़ें आ सकती हैं, ये तो मैंने बहुत छोटे टर्म में आप लोगों को बताया है। ठीक है, और हम लोग एक दिन में ये सारे काम नहीं करते हैं, इसमें लगते हैं सालों। ठीक है, एक साल भी लग सकता है। अब लाइक इफ द प्रोजेक्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट डोंट हैव एनी डोमेन नॉलेज, तो आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे चीज़ों को? आप नहीं कर सकते हो। आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि इसमें तो आपने बता दिया, बट अगर कोई डिफरेंट एकदम से आ जाएगा उसमें हम कैसे करेंगे? So you want a proper person who know the domain knowledge as well, just like subject matter expert। अगर वो कंपनी के अंदर में है तो उनकी हेल्प लोगे आप इस चीज़ को करने के लिए, बिकॉज सब कुछ बिजनेस एनालिस्ट को नहीं आता ना। और अगर कोई एक्सेप्टेशंस लगा के रखा है कि बिजनेस एनालिस्ट को सब कुछ आता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये भी एक मिथ है। तो हाँ, बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग चीज़ें कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। सो इफ द प्रोजेक्ट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट बिकॉज द प्रोजेक्ट इज टू टेक्निकल एंड जो डोमेन नॉलेज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, सो यू वांट ए प्रॉपर पर्सन हु नो द डोमेन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाओ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुलाओ, या फिर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स होती हैं हम लोगों के पास, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा बाइसेक्शन करते हैं। Got it. ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू हमारा क्रिएशन लाइक WBS और टॉप डाउन स्ट्रक्चर। तो वंस द टॉप डाउन स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट विच इज नोन एज द कॉस्ट एस्टिमेशन, सी कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन में as a business analyst you have to know about the cost of the developer, cost of the QA, cost of business analyst, project manager or UI UX designer along with the team and the timeline as well। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे कॉस्ट एस्टिमेशन में, इस पूरे के पूरे कॉस्ट एस्टिमेशन में लेट सपोज दैट कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक BA है, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, 3 डेवलपर हैं, एक QA है और एक UI UX डिजाइनर है। ठीक है, दिस इज द टीम साइज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली आस्क ए क्वेश्चन व्हाट अबाउट योर टीम साइज, वो हमेशा ये पूछेगा। और आप लोग कोई एक प्रोजेक्ट नहीं दिखाने वाले। यू गाइज विल ऑलवेज से दैट कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आई एम हैंडलिंग 4 to 5 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। ठीक है, सो एवरी प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट डिफरेंट टीम साइज, तो वो टीम साइज भी पूछने वाला है। सो ऑलवेज से दैट कि जो टीम साइज है वो 12 to 13 मेंबर का है, जिसमें 7 से 8 डेवलपर हैं, 4 टेस्टर हैं, एक PM है, एक BA। इस तरीके से आप लोगों को बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन क्रिएट करते हैं, जब कॉस्ट एस्टिमेशन को कैलकुलेट करते हैं, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नो द आवरली रेट, कि आवरली रेट क्या है, बिकॉज 98 और 99% कंपनी जो है दे आर वर्किंग ऑन द आवरली रेट। फिक्स प्रोजेक्ट पे बहुत कम चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द आवरली रेट ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट? ठीक है, सो $40 पर आवर। ठीक है, PM का क्या है, सेम $40 पर आवर। डेवलपर के क्या है, $30 पर आवर। ठीक, QA का क्या है, $25 पर आवर। UI UX डिजाइनर का क्या है, $20 पर आवर। सो ये पूरी की पूरी कॉस्ट है।
दिस इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए इंडिविजुअल्स जो कि उस पर काम करने वाले। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई पहले? समझ में आया ये चीज? Yes, Akash. So the third point is related to जो हमारा एपिक है, according to the epic we are going to calculate the cost। मैं एक करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सो द एपिक नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू, क्या था एपिक नंबर फर्स्ट? यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। ये था एपिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इस एपिक नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास कुछ स्टोरी भी थी, ठीक है। जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, हमारे पास स्टोरी थी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या था? डिजाइन वायर फ्रेम था, बैकएंड की एपीआईज थी, फ्रंट एंड की एपीआईज थी, क्यूए काम कर रहा था उस पर, क्यूए टेस्टिंग था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो ये सब के सब लोग कितना टाइम लेंगे? अच्छा, डिजाइन वायर फ्रेम करेगा तो कौन करेगा डिजाइन वायर फ्रेम? वायर फ्रेम को डिजाइन कौन करेगा? डिजाइनर करेगा। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू आस्क डिजाइनर हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट द डिजाइन ऑफ दिस यूजर मैनेजमेंट, यस और नो? यस। करोगे ना, तो वो आपको टाइम देगा कि मुझे इसको करने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर्स, ठीक है। 10 आवर्स, ओके फाइन। बैकएंड डेवलपर से पूछोगे क्योंकि बैकएंड तो डेवलपर ही क्रिएट करेगा ना। अब बैकएंड डेवलपर से सेम क्वेश्चन, हाउ मच टाइम? तो वो बोलेगा कि लाइक जो भी 30 आवर्स लेट सपोज। ऐसी फ्रंट एंड डेवलपर बोलेगा लाइक 25 आवर्स, ठीक है। ऐसी क्यूए बोलेगा, ठीक है, कि मुझे पूरा का पूरा टेस्ट करने में कम से कम एटलीस्ट 15 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। सो जब आप इनकी कॉस्ट को इनके आवरली रेट से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट ए टोटल अमाउंट, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी। दिस इज फॉर एपिक नंबर, दिस इज फॉर स्टोरी नंबर 1। तो हमारे पास एक एपिक के अंदर 2 स्टोरी थी, सो वी हैव 2 स्टोरी अंडर दिस एपिक। सो स्टोरी नंबर सेकंड का भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड कैलकुलेट करने के बाद दिस टोटल एंड वी विल गेट द फाइनल टोटल। तो जो भी बनेगा 4000, 5000, 6000, $7000, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन एपिक। सो वंस द एपिक इज कंप्लीटेड प्रॉपरली, once the epic is deployed, then we will generate the invoice to the client कि इतना पैसा आप लोग को देना है। समझ में आई चीजें कैसे काम कर रही हैं? बताओ गाइस। Yes, Akash. Akash, the rate you have defined, is it like the average cost of the industry, or what, or just we have taken like the assumption? Right now I am taking over your assumption, but the CTO and the CEO of the company is responsible for this cost, तो वही आप लोगों को बताएंगे। जनरली CTO ही बताता है। Suppose if interviewer asked us the same question, like what is the cost estimation of one module you have worked on, so like how we can calculate the cost, because in real time we have not worked, right? So we do not have any idea. So देखो, when we talk to about the e-commerce project ना, so e-commerce में जो कॉस्ट जाती है वो $30,000 $35,000 के आसपास जाती है। For one epic नहीं, कंप्लीट project, complete project. तो आपको ऐसे बताना है कि रिसेंटली आई गॉट ए प्रोजेक्ट जो मेरे पास था। सो एज ए बिजनेस एनालिस्ट एंड विद माय डेवलपमेंट टीम, मैंने उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट एपिक्स में ब्रेक किया एंड द टोटल नंबर ऑफ एपिक्स इज 6 एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द कॉस्ट जो आई थी वो $35,000 के आसपास आई थी। Okay. डिफरेंट कॉस्ट। Okay, let's suppose like we have mentioned this means HRMS project in our like resume, right? And we have, I believe that 13 to 14 modules are there. So for that project, like what should be the estimation cost? अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है और इफ यू हैव, बिकॉज वो तो प्रोडक्ट है ना, वो Right. प्रोजेक्ट नहीं है ना, वो प्रोडक्ट है।
Mm-hmm. प्रोडक्ट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रीमियम एंड फ्रीमियम। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे हो जाएगी? वो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा आपका, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रहा है, वहाँ डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट फीचर्स हैं वो आप फ्री में दे रहे हो, और जो आपके प्रोडक्ट एनहांसमेंट फीचर है वो आप पैसों में दे रहे हो। But there should be a cost, right? Because हाँ, देयर like शुड the बी कॉस्ट ऑफ development दैट। and designing team has worked on those things, right? There सो should दैट, be a cost. हाँ, देयर शुड बी कॉस्ट। ठीक है, तो देखो, अगर ह्यूमन रिसोर्स, अगर आकाश, हाँ, yes, बोलो। जस्ट मिनट, वन क्वेश्चन। मतलब हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर तो रहे हैं, बट सिंस आई हैव ऑल्सो वर्कड, मैंने कभी ऐसा एक्चुअल प्रोजेक्ट में एनालिस्ट को हैंडल करते हुए नहीं देखा है। सो आई एम नॉट श्योर, मे बी मेरी प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट है, बट आई डोंट नो कि ये कॉस्ट एस्टिमेशन कभी आता है। जब बिजनेस एनालिस्ट थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, जब वो जिस कंपनी के अंदर बिजनेस मैनेजर नहीं होता है, ठीक है, Even for the senior business analyst, I don't think this part comes into cover. नहीं करते, बट सम कंपनी आस्क दिस क्वेश्चन कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू नो अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन और नॉट। दिस इज नॉट द पार्ट, 90% ये आपका पार्ट नहीं है, Yeah. बट सम कंपनी वांट्स अ पर्सन हु नो कॉस्ट एस्टिमेशन एज वेल। अब कुछ कंपनी तो ये भी चाहती है कि आपको पूरा का पूरा गैंग चार्ट बनाना आना चाहिए, विच इज ऑल्सो नॉट योर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे आप क्या करोगे फिर? वहाँ पे आप ब्लैंक हो जाओगे इंटरव्यू में। Okay. कुछ ना कुछ तो हम लोग, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, ऑलमोस्ट 17 to 18 इंटरव्यू हुए अभी 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सब लोगों से, ऑलमोस्ट 90% लोगों से कॉस्ट एस्टिमेशन का पार्ट पूछा है। दैट्स वाई मैं ये करा रहा हूँ, वरना इसका कोई वो ही नहीं है, मोटिव ही नहीं है कराने का। वैसे तो स्क्रम भी आपका पार्ट नहीं है, अगर मैं पूरा स्टैंडर्ड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ। कैपेसिटी एनालिसिस इज नॉट ऑल्सो योर पार्ट, वेलोसिटी एनालिसिस इज नॉट ऑल्सो योर पार्ट, बट फिर भी करना पड़ रहा है। Okay. ठीक है, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें एक बिजनेस एनालिस्ट ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे हु नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द होल स्क्रम एज वेल। फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, है ना? तो ये चीज़ें आई हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप खुद नहीं करते हो, डेवलपमेंट टीम आप लोगों के साथ होती है। ठीक है, दे विल टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। But Akash, give me that idea about the like that the cost of that HRMS product. देखो, द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज टोटली डिपेंड अपॉन द कस्टमाइजेशन। कभी कभी $1.5 भी जाती है, कभी कभी $3 लाख भी जाती है। ठीक है, तो वो So कितना are कस्टमाइजेशन। we going to like estimate this cost always in dollar, or we can do it in INR as well? Always in dollar, because we are going to showcase the US client, not the Indian client. Okay. तो हमेशा आपको यूएस का ज़्यादा बताना है, यूएस यूके का क्लाइंट ज़्यादा बताना है, इंडिया क्लाइंट थोड़ा सा कम बताना है, क्योंकि हर एक कंपनी यूएस यूके क्लाइंट ही चाहती है, क्योंकि पैसा ही वहीं से आ रहा है, सीधी सी बात ये। Right. आकाश, एक चीज और थी, आपने डॉक्यूमेंटेशन जब कराया था ना, तो जो बीआरडी और एफआरडी का आपने डॉक्यूमेंट दिखाया था ना, वो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड ऑन द लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप, सो इफ यू कैन जस्ट शेयर। ओके, मैं ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ इसको ना। ओके, थैंक यू। Any question as of now, guys, in work breakdown structure? Because in next class we are going to discuss the Jira. तो जीरा के अंदर फिर अगर कोई प्रॉब्लम आया तो फिर वहाँ बहुत क्योस होगा। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में तो पूछ सकते हो। आकाश भाई इसी से रिलेटेड पूछना है सर? किसी और चीज़ से भी रिलेटेड पूछ सकते हो, नो इश्यूज। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये लेक्चर एंड हो चुका है।